Hello students, I'm Ruchika from English Academy and today we'll study a lesson for students of class 10th from the First Flight book. This is chapter number 3, Two Stories About Flying. इस चैप्टर में दो कहानियां हैं. पहली तो है His First Flight by Liam O'Flaherty and the second one is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. तो ये जो पहली स्टोरी है His First Flight, ये एक सीगुल की कहानी है, एक बर्ड जो कि उड़ना सीखता है. एंड द सेकेंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट हु इज फ्लाइंग अ प्लेन एंड सडनली ही कम्स इन द स्टॉर्म. Here we study part 2 of chapter 3, that is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन. इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि एक पायलट ये एक एरोप्लेन उड़ा रहा है और सडनली एक स्टॉर्म में फंस जाता है. काले रंग का स्टॉर्म है, तूफान है जो कि चारों तरफ से इसके प्लेन को घेर लेता है और इसके सारे सिग्नल्स बंद हो जाते हैं और इसे नहीं पता चलता कि अब इसे कहाँ जाना चाहिए. ये स्टॉर्म में फंस जाता है और तभी एक मिस्टीरियस सा एरोप्लेन आता है. वो पायलट इसकी मदद करता है और इसे स्टॉर्म में से निकलने में कामयाब कराता है. लेकिन बाद में इस पायलट को नहीं पता चलता कि ये एरोप्लेन कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है. तो ये एक मिस्टीरियस प्लेन है जो कि इसकी मदद करता है. सो लेट अस बिगिन रीडिंग द स्टोरी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. Now the moon was coming up in the east, that means moonrise हो रहा था, that means it was the time of dusk, evening का time था, रात होने वाली थी. When he says the moon was coming up in the east behind me, यानी कि उसके पीछे, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? He is going towards the west. तभी जो मूनराइज ईस्ट में हो रहा है वो उसके बिहाइंड है, उसके पीछे है. So he is traveling towards the western direction. And then he says stars were shining in the clear sky above me. Then he says there wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. So the sky was very clear, there was no clouds, the stars were visible and it was a good situation for him to fly the aeroplane. तो वो बड़े आराम से अपना प्लेन उड़ा रहा था and he could see the sleeping countryside below him. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. What is Dakota? Dakota is a type of aeroplane. So he's saying that I was flying this aeroplane over France back to England. So वो फ्रांस को क्रॉस करता हुआ इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So the time was 1:30 a.m. I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. Now, as he was crossing France, he reached the sky limits of Paris. And so he thought that he should contact the control room of Paris to inform them that he is crossing that place. And below he could see the city lights. He could see the bright lights of Paris. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. Now this is the way in which you communicate through a radio. So here the pilot contacted the Paris control room and he says that Paris control room, I am calling from Dakota DS088. ये उसका कोड नेम है. और फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. ओवर कहते हैं मैसेज के एंड में, ये सिग्निफाई करने के लिए कि अब मेरी बात कंप्लीट हो गई है, अब आप बोल सकते हैं. So what did the Paris control room say? The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. तो जो पेरिस कंट्रोल रूम है वहां से जवाब आया. वो कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें सुन सकते हैं, तुम्हें अभी के अभी 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न करना होगा.
तो जब भी कोई पायलट्स है प्लेन चलाते हैं, दे यूज अ कंपास विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन। तो कंपास से उसे पता चल जाएगा कि 12 डिग्रीज वेस्ट मुड़ने के लिए उसे अपने प्लेन को कैसे घुमाना है। तो पेरिस कंट्रोल रूम ने उसे डायरेक्ट किया कि तुम 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न हो जाओ। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो अब जैसे कि उसने पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जाना था, he had to take a detour of 12 degrees west. And then he says कि मैंने मैप चेक किया और फिर अपने कंपास को चेक किया एंड देन मैंने ये डायरेक्शन चेंज की और साथ ही साथ उसने अपना लास्ट फ्यूल टैंक स्विच ऑन कर लिया। तो उसके डकोटा में फ्यूल भी कम था। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो पायलट ने सोचा कि वो इंग्लैंड टाइम पर पहुंच जाएगा फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह के टाइम, और उसकी फ्लाइट बहुत ही आराम से चल रही थी, बहुत ही इजीली वो अपने प्लेन को उड़ा रहा था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. अभी उसने पेरिस क्रॉस किया था और वो उसके ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर आगे ही निकला था जब उसने बादल देखे। बहुत ही घने बादल थे। उसे ऐसे लग रहा था कि सामने कोई काले रंग के पहाड़ खड़े हुए हैं, तो इतने बड़े और घने बादल थे। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. पायलट ने ये रियलाइज किया कि वो इन क्लाउड्स के बीच में से नहीं जा सकता, वो ऊपर की डायरेक्शन में जाकर भी उन्हें क्रॉस नहीं कर सकता और वो उनके गोल घूम के भी नहीं जा सकता। So he felt that he did not have any way to cross these huge storm clouds. उसके पास कोई भी वे आउट नहीं था इन्हें पार करने का। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. अब उसने पहले तो ये सोचा कि मैं वापस पेरिस चले जाता हूँ क्योंकि मैं स्टॉर्म को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन वो घर जाना चाहता था, आराम से ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसलिए उसने रिस्क लिया और उसने सीधा अपना एरोप्लेन तूफान के बीच में घुसा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब जब वो इन स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर घुस गया, काले ब्लैक रंग के क्लाउड्स थे, तो उसे आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। नथिंग वॉज विजिबल एंड उसका जो एरोप्लेन है वो इतनी तेज स्टॉर्मी क्लाउड्स में हिल रहा था, जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, तो वो अनस्टेबल हो रहा था। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. तो उसका जो मैग्नेटिक कंपास था जो उसे डायरेक्शन बताता था वो भी चलना बंद हो गया था, बिकॉज इतने डेंस क्लाउड्स थे, इतना बड़ा तूफान था कि वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो मैग्नेटिक कंपास भी वर्क करना बंद हो गया था और जो रेडियो था जिसके थ्रू वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर रहा था वो भी काम करना बंद हो गया था। तो स्टॉर्म में क्या हो रहा था, सारे इक्विपमेंट फेल हो रहे थे। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. तो अब इस पायलट ने गलत डिसीजन ले लिया था जो कि वो स्टॉर्म में घुस गया था, क्योंकि अब उसका सारा इक्विपमेंट फेल हो गया था। रेडियो वॉज नॉट वर्किंग, कंपास वॉज नॉट वर्किंग, ही इज लो ऑन फ्यूल ऑल्सो, एंड ही डज नॉट नो वेयर ही इज, ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड। Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm.
अचानक से एक और एरोप्लेन आ जाता है। उसकी कोई लाइट्स नहीं है, उसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं है, लेकिन ये जो प्लेन है ये उस प्लेन के बिल्कुल साथ उड़ रहा है और पायलट उसे देख सकता है। सो दिस इज दैट मिस्टीरियस एरोप्लेन. All of a sudden it has appeared next to this plane. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब ये जो मिस्टीरियस एरोप्लेन है उसका पायलट विजिबल था, उसने अपना एक हाथ उठाकर इस पायलट की तरफ वेव किया. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost, I thought. He is trying to help me. अब ये जो मिस्टीरियस एरोप्लेन है इसका पायलट हमारे लॉस्ट पायलट की हेल्प कर रहा है. वो उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो. तो जो पायलट है जिसके प्लेन में कोई भी इक्विपमेंट वर्क नहीं कर रहा, उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी मदद करने के लिए आया है और तभी उसको फॉलो करने के लिए कह रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. Obedient child is such a child who obeys the elders. तो ये जो स्ट्रेंज मिस्टीरियस एरोप्लेन आ गया था, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की डायरेक्शन में टर्न किया और इस डकोटा के आगे लगा लिया ताकि वो आराम से उसे फॉलो कर सके. तो ये जो पायलट है जो बेचारा तूफान में गुम हो गया था, इसे एक नेविगेटर मिल गया जो कि उसे इस तूफान में से बाहर निकाल रहा था, इसलिए इसने बहुत ही अच्छे से एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह इसको फॉलो करना शुरू कर दिया. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. आधे घंटे तक ये जो एरोप्लेन है, मिस्टीरियस एरोप्लेन, ये इस डकोटा एरोप्लेन को लीड करता रहा तूफान से बाहर. उसके बाद उसके एरोप्लेन में सिर्फ 5 या 10 मिनट तक उड़ने का फ्यूल बचा था. So he was really low on fuel. He had to land as quickly as possible. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब ये जो घुमा हुआ प्लेन है इसके पायलट को डर लग रहा था because he is low on fuel. लेकिन तभी उसने क्या देखा कि ये जो स्ट्रेन सा एरोप्लेन है ये नीचे की तरफ जा रहा है और वो भी उसे फॉलो करने लग गया. Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. जैसे ही वो स्टॉर्म में से बाहर निकले, उसने क्या देखा? सामने रनवे है. उसे 2 पैरेलल लाइंस दिखी जिन पर लाइट्स लगी हुई थी. These indicate a runway where he could land his plane. तो वो बहुत ही रिलैक्स हो गया कि अब वो सेफ है, वो सुरक्षित है, फ्यूल खत्म होने से पहले वो लैंड कर सकता है और वो सक्सेसफुली जीता जागता तूफान में से बाहर आ गया था. तभी उसने आसपास देखा उस मिस्टीरियस एरोप्लेन के लिए ताकि वो उस फ्रेंड को थैंक कर सके जिसने उसकी मदद की थी. लेकिन स्काई वॉज एम्प्टी. वो मिस्टीरियस एरोप्लेन गायब हो चुका था. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तो जैसे ही इस पायलट ने आसपास देखा उसे वो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन नहीं मिला. वो गायब हो चुका था, वो कहीं भी दिख नहीं रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. तो इस पायलट ने सक्सेसफुली अपने प्लेन को लैंड किया और इस डकोटा से उतरकर कंट्रोल टावर की तरफ चला गया. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो इस पायलट ने इस कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई वुमेन से पूछा कि वो कहां पर है, बिकॉज उसका कंपास वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि वो कहां पहुंच गया है तूफान में से निकलता निकलता. और साथ ही साथ उसने ये भी पूछा कि जो दूसरा एरोप्लेन है उसका पायलट कहां है, बिकॉज वो उसे थैंक्स करना चाहता था.
She looked at me very strangely and then laughed. अब ये जो कंट्रोल सेंटर में लेडी है, ये इस पायलट की तरफ अजीब से वे में देख रही थी and then she started laughing. Why was she laughing? Because there was no other plane. She says, another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. वो कहती है कि आज और कोई भी एरोप्लेन इस तूफानी मौसम में नहीं उड़ रहा था, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन है जिसे कि मैं रडार पर देख सकती थी. Radar is such a mechanism which is used to detect any flying aeroplanes or helicopters which pass through a particular area. तो ये जो लेडी ऑफिसर है ये पायलट को बताती है कि यहाँ पर आज इस एरिया में और कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था. तो वो हैरान है कि फिर उसकी मदद करने वाला एरोप्लेन कहाँ से आया और किसका था. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये जो पायलट है इसके मन में कुछ सवाल हैं. वो ये सोच रहा है कि वो एरोप्लेन कहाँ से आया, किसका था, कौन उसे उड़ा रहा था, जिसने के बिना कंपास और रेडियो के उसकी मदद की कि वो सक्सेसफुली लैंड कर सके, जबकि उसके एरोप्लेन में फ्यूल भी कम था. और फिर वो ये सोचता है कि पता नहीं ये एरोप्लेन कहाँ से आया, एक अजीब सा ब्लैक कलर का एरोप्लेन जिसमें कोई लाइट्स भी नहीं थी. अचानक से तूफान में कहीं से एक प्लेन आता है, पायलट की मदद करता है, उसे सक्सेसफुली तूफान से बाहर निकाल देता है और गायब हो जाता है. So these are some of the questions which are lingering in the mind of the pilot and they are unanswered. With this we come to an end of this lesson. Thank you for watching this. I hope you liked this interesting story and you've understood it. In case you have any queries, feel free to write in the comment section. And for more videos, please subscribe to our channel, English Academy.